us for part of the session and continue your blessings, sir. Thank you very much. Now we move over to our keynote speaker, Mr. Deepak Seth. Mr. Deepak Seth is a technology and innovation advisor, and a well-renowned public speaker and writer. He has handled diverse and progressively increasing responsibilities at leading consulting organizations and the IT organizations of several Fortune 500 companies. Deepak is a passionate advocate for innovation and adoption of cloud solutions, artificial intelligence, machine learning, API microservices, AR, VR, predictive analysis, collaboration tools, blockchain, and other nascent/disruptive technologies into the enterprise to develop new opportunities and applications. He has extensive experience in sales, finance, and information technology across Asia, Africa, and the Americas. Deepak is an alumnus of IIT Roorkee, followed by IIM Calcutta, and has pursued further studies at the Simon School, University of Rochester, and Johns Hopkins University. Deepak is an avid blogger and has contributed a number of management and current affair articles to the publications such as CIO.com, MyTechMag, Wall Street Journal, Rochester Democrat, and Chronicle, the Times of India, and the Pioneer. His observations and comments on innovation and strategy have been published in Harvard Business Review and the McKinsey Quarterly. On the speaking circuit, Deepak has spoken on managing cross-cultural conundrums, global IT professionals stepping out of comfort zone, on which he will be talking today as well, IT framework for innovation, and several other topics. On a personal front, I have yet to meet a person more intelligent and brilliant than Deepak Seth, and he has been my mentor all through my life. Over to you, sir. Deepak, sir. Very, very kind words indeed, Sanjay. Really appreciate that. Or all the other people who spoke before you, thanks for their blessings and the nice prayer which we started the session with. So brought back memories of home. I'm based in Fort Worth, Texas, USA right now. So it's just past midnight here. So pardon my disheveled appearance because it's late in the night. So very interesting topic I'll be speaking on today, which is stepping out of the comfort zone. But before I start that, what I would say is, let's all of you are muted, but let's give a big round of applause to the organizers and all the 250 plus people who have joined here today. Let's go ahead and do that. I should see some hands clapping on the pictures I am seeing. So great. Now let me start sharing my screen because I have got some slides which I would like to share with you. And let me know if you are able to see them. Sanjay, are you able to see the slide? Yes, we can see. Please go ahead. Okay, great. Let me get started. So the topic is stepping out of the comfort zone, and especially why is it very important in the post-COVID-19 world which we are living in right now. Now, as far as stepping out of the comfort zone is concerned, I have been speaking in English for many years now, but this time around I have thought I will step out of my comfort zone, and since I am amidst such Hindi premi people, I will speak in Hindi. I'll try to do as much of my session in Hindi as possible. So अगर थोड़ी बहुत गलती भूल चूक हो जाए तो उसको माफ कर देना. So ये साल हमारा शुरू हुआ 2020. सबके मन में बड़ी आशाएं होंगी कि ये साल कैसा होगा, हम इसमें कई सारी उपलब्धियां करेंगे, कई ऊंचाइयों पर जाएंगे, नए इजाद करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे. लेकिन फिर ये कोरोना वायरस आ गया. कोविड ने हमारा पूरा मानचित्र ही दुनिया का बदल दिया, और एक नई दुनिया एक इमर्ज हो रही है जिसका एक वन सेंटर पॉइंट उसका हो गया है वूका, जिसको कहते हैं वूका. वूका स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी. सो ये आज का सत्य हो गया है. मतलब कोई चीज कभी भी बदल सकती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और समझने में आसान नहीं है. तो सवाल आप सबसे ये है कि क्या आप वूका के लिए तैयार हैं? क्या आपकी संस्थान वूका के लिए तैयार है?
वूका फिर से मैं बता दूं, वॉलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। नाउ वूका से डील करने के लिए क्या होना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत परसेप्टिव होना पड़ेगा, यानी कि आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है आपके चारों तरफ। प्रिपेयर्ड, आपको तैयार होना पड़ेगा। बी निम्बल, मतलब आपको चुस्त होना पड़ेगा। और एजाइल, बहुत शीघ्र से काम करने वाला होना पड़ेगा। जो भी दुनिया आपको फेंके, आपको उससे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हम सब वूका को से झेलने के लिए, कोविड से झेलने के लिए, कोविड तो सिर्फ एक चीज है, वूका हमारी जिंदगी का अब एक पार्ट हो गया है, और उससे क्या क्या असर पड़ सकते हैं, क्या हम उससे जूझने के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। हर चीज, अच्छी चीज की शुरुआत एक कहानी से होनी चाहिए, तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूं। जुलाई 10 2016 वॉज माई 50th बर्थडे। 50 साल का मेरा जन्मदिन था। एंड आई डिसाइडेड, मैंने सोचा मैं एक प्लेन से छलांग लगाऊंगा। तो ये वाला फोटो जो है ये मेरा नहीं है, पर ऐसी ही कुछ छलांग मैंने लगाई, टैंडम स्काई डाइव। एक आदमी के दूसरे, एक ट्रेंड पैराशूटिस्ट होता है, उसके साथ आप साथ में बंधे हुए होते हो। 3 किलोमीटर 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगाई थी। उसका वीडियो है, पर मैं वीडियो अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूं। तो इसका इसका मेरी आज की टॉक से क्या लेना देना है? तो एक कंफर्ट जोन से निकलकर एक बाहर छलांग लगाना, एक 50 साल के आदमी को प्लेन से जाकर और नीचे छलांग लगाना, वो एक कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने वाली चीज है। पर उससे ऐसे क्या सबक हमें मिलते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलिए सुनते हैं, आगे चलते हैं। तो जब ये मैंने 10 जुलाई को जंप लगाई, उसके बाद मैंने 11 जुलाई को एक नोट, अपनी टीम में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसमें मैंने अपनी टीम को एक नोट लिखा। और उस नोट में मैंने ये बताया कि जो मैंने प्लेन से छलांग लगाई, उसका उस प्रोजेक्ट से कैसे कोरिलेशन है, सामंजस्य है। और अब मैं सोचता हूं कि उसका जिंदगी से भी कितना सामंजस्य है। तो सबसे पहली बात ये कि जब मैंने प्लेन से जंप लगाने का सोचा, तो डर, हल्का सा डर लगता है, क्योंकि एक नई चीज है, आप एक नई चीज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो एक थोड़ा सा डर लगता है। फिर आप जाते हैं उस संस्थान के पास जो कि वो जंप कराने का काम करती है, तो वो आपको बताते हैं कि देखिए हमारे पास सारे उपकरण हैं, हमारा पायलट इतना ट्रेंड है, हमारा आपके साथ जो जंप लगाएगा वो इतना ट्रेंड है। तो उससे आपकी थोड़ी सी रिस्क रिड्यूस होती है आपको थोड़ी। तो इसी तरीके से जिंदगी की आप जो सफर पे निकले हैं, आपका इंस्टीट्यूट ने आपको उसी तरीके से हिम्मत बढ़ाई है, आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं कि जिसके कारण आपको लगता है कि आप जिंदगी की दौड़ में आगे आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या होता है कि, और वो लेकिन आपको जो जो ये जो बताने वाले होते हैं, जो आपको जंप कराने वाले होते हैं, वो ये भी आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि देखो जंप में क्या गलत हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये ज्ञान भी, आपका इंस्टीट्यूट भी आपको तैयार कर रहा है कि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये चीजें आपके लिए बुरी हो सकती हैं। अब ये आपको देखना है कि आप उसमें से कितना आत्मसात करते हैं और उससे आगे कैसे कैसे बढ़ते हैं। चलिए, फिर क्या होता है, आप प्लेन में, मैं चढ़ गया उस आदमी के साथ और वो ऊपर ऊपर चलने लगा। डर थोड़ा बहुत लगने लगा एक, और फिर छलांग का टाइम आया। उसने पहले ही मेरे को बता दिया था कि जब छलांग, मैं आपसे पूछता रहूंगा कि आप छलांग लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जब छलांग का वक्त आएगा और आप उस दरवाजे पे आ चुके हैं प्लेन के, तब आपने अगर उस प्लेन को नहीं भी छोड़ा, मैं आपकी उंगलियां हटाऊंगा और कूदूंगा, क्योंकि मैं तो कमिटेड हूं कूदने के लिए, क्योंकि उसको तो कूदना कूदना है, उसने, वो तो पहले बाहर निकल गया और वो मेरे को साथ में लेके कूद रहा है। तो इसी तरीके से आपकी जिंदगी की दौड़ में जब आप छलांग लगा देते हैं, तो बस वो छलांग लग गई, आप उस छलांग से बच नहीं सकते, वो छलांग लग गई। और शुरू में जब वो छलांग लगती है, आप प्लेन से गिरते हैं, आप उल्टे पुल्टे होते हैं, जो उसने आपको इंस्ट्रक्शन पहले बताए थे वो सब आपके दिमाग से निकल जाते हैं कि आपको हाथ ऐसे रखने हैं, ये करना है, वो करना है, मैं सब भूल गया था। तो ऐसे ही आप भी जब अभी अपने अपनी जिंदगी के सफर में निकलेंगे, आपने इंस्टीट्यूट से बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें से कुछ जब आप जैसे ही काम पे लगेंगे, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। आपके दिमाग से निकलेगा, लेकिन जो आपके साथ है, जो आपके मेंटर्स हैं, जैसे संजय बद्र जी बता रहे थे, उनके दिमाग से नहीं निकलेंगी वो बातें, वो आपको ज्ञान देने के लिए फिर भी मौजूद हैं। आपके प्रोफेसर्स हैं, वो भी आपको मार्ग दिखाने के लिए मौजूद हैं। तो मेरे को भी इंस्ट्रक्टर ने फिर से बताया कि अरे ये हाथ ऐसे करो, वो करो, उसने कराया। फिर क्या होता है, एक छोटा सा पैराशूट खुलता है, ड्रोग शूट कहते हैं उसको। तो वो सिर्फ वो आपको रोकता नहीं है, पर आपको दिशा प्रदान करता है। तो ऐसे ही आप जिंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको आपको दिशाएं मिलेंगी,
आपको कोई मार्गदर्शक मिलेंगे जो आपको रास्ता दिखाएंगे। और फिर क्या होता है कि अचानक से बड़ा पैराशूट खुलता है। बड़ा पैराशूट जब खुल जाता है तब जिंदगी मजे की हो जाती है। आप आराम से, आप नीचे देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है दुनिया कितनी मजेदार है, धूप खिली हुई है, लोग नीचे, छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, जिंदगी सब मजेदार है। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली नीचे आना है, आप नीचे गिरते हैं तो ऐसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि आप उठते ही बस गाना गाते हुए भागने लगते हैं। आप एक थोड़ा सा झटका लगता है। तो उसी तरीके से आपको भी कई प्रोजेक्टों में भी कई झटके लगते हैं। लेकिन इस सब के अंदर क्या है, दो चीजों से मैं एंड कर रहा हूं, इस स्लाइड को एंड कर रहा हूं। एक तो ये कि आपके पास हरदम, जब मैं पैराशूट में जंप लगा रहा हूं तो एक सेफ्टी शूट भी होता है, जो कि अगर मेरा मेन पैराशूट नहीं खुला तो वो दूसरा शूट खुलेगा ही खुलेगा, वो और नीचे आके फिर खुलेगा, खुलना है उसको, मतलब अगर नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा तो जान गई। तो इसी तरीके से आपका हर एक के पास एक प्लान बी भी होना चाहिए कि मैं जिंदगी में ये करने के लिए निकला हूं, पर अगर ये नहीं होता तो ये मेरे पास एक प्लान बी है। लेकिन प्लान भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कांस्टेंट डावाडोल रहे हैं प्लान ए और प्लान बी के बीच में। एंटरप्रेन्योर संजय जी वगैरह बताएंगे आपको कि उन्होंने एक मार्ग चुन लिया तो उसके बाद कैसे उस पे बिल्कुल वो जो तीर अर्जुन को जैसे सिर्फ आंख दिख रही है, वैसा भी होना जरूरी है, चिड़िया की आंख। और तो आपके पास एक सिस्टम है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपके मेंटर्स हैं जो आपको जिंदगी की राह में आपको आगे ज्ञान देते रहेंगे। तो अब आते हैं हम इस पे कंफर्ट जोन पे की बात करने के लिए। ये कंफर्ट क्या है? कंफर्ट आराम है, कंफर्ट माँ की गोद है, कंफर्ट वो चीज है जो आपको बहुत, आप चाहते हैं कि आप कंफर्ट, हम हर आदमी चाहता है जिंदगी में कि हम कंफर्टेबल हों। लेकिन कंफर्ट के कारण हम अपने आप को एक जोन में डाल लेते हैं जिसको एक कंफर्ट जोन कह रहे हैं, जहां हमें लगता है हम ठीक हैं। जैसे हम अपना एक दोस्तों का सर्कल बनाएंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं अपने जोन में, तो ये एक कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन इस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपकी ग्रोथ है वो कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जो आपको सॉल्यूशन मिलने हैं प्रॉब्लम्स के, वो अक्सर आपके कंफर्ट जोन के बाहर होंगे। तो आपने टेक्सटाइल मिल लगाई लेकिन प्रॉब्लम फाइनेंस की हो सकती है। आपने फाइनेंस का काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम मशीनरी के साथ हो सकती है। तो सॉल्यूशन आपको कंफर्ट जोन के बाहर मिलेंगे। और जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट है या संतुष्टि है, वो भी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर मिलेगी। जो आप अपने कंफर्ट जोन की चीज है वो तो आप रोज कर ही रहे हैं, उसमें आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करी गई उपलब्धि से मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन डिस्कंफर्ट, यानी कि जो कष्ट है, वो ही हमारा कंफर्ट जोन है। क्योंकि कांस्टेंट दुनिया में ऐसी एक के बाद एक, अभी गुप्ता जी ने बताया आपको कि मार्ग में संघर्ष आएंगे ही आएंगे, तो डिस्कंफर्ट भी हम इज आज की सच्चाई। कंफर्ट में क्या बुराई है? कंफर्ट आपको कॉम्प्लासेंट बना देता है। कॉम्प्लासेंट का मतलब कि आप सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ कोई झटका कोई कुछ मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो एज एन एम्प्लॉय आपको कंफर्ट जोन से, अब आप निकलेंगे, आप काम में जाएंगे, तो आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एज एन एम्प्लॉय क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? तो दो तीन चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको चैलेंजेस लेने चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। तो मैं टेक्सटाइल इंजीनियर नहीं हूं तो मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की सारी भाषा नहीं जानता हूं, लेकिन सपोज आप स्पिनिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप वीविंग का काम भी सीखिए, या जो भी इंडस्ट्री में इस तरीके की चीजें हैं, आप एक तरीके के लूम के आप सीख के गए हैं तो दूसरी तरीके के लूम के बारे में जानकारी, तो आप अपने दूसरे प्रोफेशनल चैलेंजेस लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कोलैबोरेशन। अब आज मेरे को काम करते हुए 30 साल हो गए, कोई और लोग हैं उनको भी कई सारे साल हो गए। सबसे बड़ी चीज है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो ही लाइफ में भी ट्रू है, वो ही इंडस्ट्री में भी ट्रू है। आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना है।
तो अगर आप हो सकता है कि आप अकेले काम करने में कंफर्टेबल हो, तो लेकिन आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको दूसरे विभागों से, आपको दूसरे लोगों से नेटवर्क बनाना है और साथ मिलकर काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ाई आपको यहां से इंस्टीट्यूट से डिग्री मिल जाएगी, हो सकता है आपको उसके बाद मास्टर्स की डिग्री भी आप कहीं और से ले लेंगे, लेकिन आज की जमाने में पढ़ाई आप कभी खत्म नहीं मान सकते। कांस्टेंट पढ़ाई करनी है, क्योंकि द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग, द वे टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, द वे थिंग्स आर चेंजिंग, you have to keep on acquiring the new knowledge of tomorrow. आज की पढ़ाई नहीं, पुरानी पढ़ाई नहीं, जो होने वाला है उसकी पढ़ाई। तो आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज कर रहे, लेकिन आपको पता चला है कि कल उसका यूज होने वाला है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाई कीजिए, आप मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाई कीजिए, आप पता करिए कि आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज हो सकता है और कैसे आपको वो इंपैक्ट कर सकती है। तो कीप लर्निंग। एज ए कंपनी आपको कंफर्ट जोन से क्यों निकलना है और क्या करना है? आपको कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पहला है कि डेटा बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको डेटा समझने की काबिलियत हासिल करनी है। इतना तरह के तरीके का डेटा है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे डिकोड करना है। मार्केट का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, मे बी आप डेटा ओरिएंटेड नहीं है, आपका उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड वन इज एजिलिटी इज द किलर बिहेवियर। एजिलिटी यानी कि चुस्ती, यानी फट से निर्णय लेना और आगे बढ़ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। तो एज एन एम्प्लॉय आपको लर्निंग करनी है और एज ए कंपनी आपको इनोवेट करना है, और ये दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो इस जो मैंने कहा था कि कांस्टेंट आजकल एक डिस्कम्फर्ट जोन बन गया है, इस डिस्कम्फर्ट जोन से मैं रहने के लिए, डिस्कम्फर्ट जोन में आगे बढ़ने के लिए क्या स्किल्स चाहिए? 2 स्किल्स चाहिए। थिंक फास्ट, थिंक फॉरवर्ड। थिंक फास्ट, अभी एक भारतीय आईबीएम के हेड बने हैं अरविंद कृष्णा, और उन्होंने अपना जो पहला नोट लिखा एम्प्लॉइज को, उन्होंने यही सबसे बड़ी बात करी कि वो दिन लद गए जब आप पैरालिसिस बाय एनालिसिस कर सकते थे, किसी चीज का निर्णय लेने के लिए महीनों, दिनों, साल निकाल देते थे, वो दिन लद चुके हैं। यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस, एंड यू डोंट नेसेसरली, दे डोंट हैव टू बी द बेस्ट डिसीजंस, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस। तो कई बार क्या होता है, आप वो एक आइडियल चीज बनाने के चक्कर में आप इतना टाइम लगा देते हैं कि जो अभी आज की जरूरत है वो पूरी नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप यू हैव टू थिंक फास्ट। एंड दूसरा जो मैंने पहले भी बात की, यू हैव टू थिंक फॉरवर्ड, आगे का सोचना है, क्या आगे होने वाला है, उसके लिए मैं कैसे तैयार रहूं, उसके लिए मैं अपनी कंपनी को कैसे तैयार करूं, और अगर आप उद्यमी हैं तो अपने उद्योग को आगे आप कैसे कैसे तैयार करें, जो इनोवेशन होने वाला है उसके लिए आप कैसे, उसमें कैसे सक्षम बने। तो अब ये सब मैंने इतनी बातें कर दी, अब आप ये कहेंगे कि यार ये जो इतने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें सैर पे जाना है, हम आराम से हैं अपने कंफर्ट जोन में और कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन से स्टेप करने, आउट करने में आपके लिए कोई वैल्यू है। जिस चीज को आप वैल्यू करते हैं उसमें आप टाइम लगाएंगे। अगर आप किसी चीज को वैल्यू ही नहीं करते, आप कहते हैं कि यार ये सब बकवास कर गया दीपक सेठ, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो यू हैव टू एक्नॉलेज कि कंफर्ट जोन से निकलने में वैल्यू है। एंड इट कुड बी एज सिंपल, जैसे गुप्ता जी भी बता रहे थे कि आप मंत्र करते हैं, ये करते हैं, तो वैसे ही एक मंत्र आप अपने लिए कर सकते हैं कि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करना है। आप अपने आप से कहिए, आप आईने के सामने खड़े होकर कहिए कि आई वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। सिंपल थिंग। कई बार मैं ये और टॉक देता हूं लोगों के सामने, तो मैं भीड़ से बुलवाता हूं यही चीज कि आई वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। दूसरा है लीन इनटू द एक्सपीरियंस, यानी कि जो आप करने जा रहे हैं, शेरिल सैंडबर्ग ने बुक भी लिखी लीन इन करके, मतलब आप आगे झुक के आप उसमें पूरा लगिए, उसमें आप उसकी तरफ झुकिए, ना कि उससे दूर की तरफ झुकिए। तीसरा है नोटिस योर फियर, यानी डर लगेगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाने में डर लगेगा, और वो डर लगना कोई गलत बात नहीं है, डर लगना लाजमी है, डर लगना नेचुरल है, आप उसको नोटिस करिए। पर आप डर और दहशत में फर्क होता है, डर करना ठीक है, दहशत करना गलत है, तो ये आपको ध्यान रखिए।
चौथी थिंग, डोंट ओवर थिंक इट। वही जो मैंने पहले भी बात की, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मतलब उस चीज में मत जाइए, ओवर थिंक मत कीजिए, एक लेवल तक सोचिए और फिर आगे बढ़िए। प्ले फुल आउट, ये अमेरिका में बहुत कॉमन चीज कहते हैं हम, प्ले फुल आउट, यानी कि अगर हम मैदान में उतरे हैं तो बस पूरे उतरे हैं। जैसे कि पुराने जमाने में कहते थे कि कोई लोग जब वाइकिंग्स इंग्लैंड पर चढ़ाई वगैरह करते थे तो जब वो लैंड करते थे तो उनकी बोट्स को जला देते थे, ताकि वो वापस, उनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, जहां उतरे हैं वहीं पे उनको सब कुछ करना है। तो यू हैव टू प्ले फुल आउट, पूरा दिल लगा के, मन लगा के उसमें करना है। अगला पॉइंट है सेलिब्रेट द विक्ट्री। तो जैसे आप चीजें करेंगे तो इसमें आपको छोटी छोटी जीतें मिलेंगी। और हमारा इंडियन कल्चर है कि मैं जानता हूं कि हम चीजों को सेलिब्रेट कम करते हैं, हम शाबाशी कम देते हैं, हम एक दूसरे को एक्नॉलेज कम करते हैं। अब बाप बेटे को नहीं कहेगा कि यार तूने अच्छा काम कर दिया, कि अगर कह दिया तो वो बिगड़ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही माँ बेटी, मतलब इट्स इन आवर कल्चर, वी डू नॉट प्रेज पीपल, वी डू नॉट सेलिब्रेट थिंग्स, which is very different in America. यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज के लिए मतलब ताली का पीटना and shabashi dena is considered part of the culture. Means you can't work, you can't move ahead without doing that. You have to acknowledge and celebrate the victories. And the last thing is pause to reflect. जो हो गया उसके बारे में सोचें, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, मैं क्या बदल सकता हूं। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो वंस अगेन मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Acknowledge the value, lean into the experience, notice your fear, don't overthink it, play full out, celebrate the victory, and pause to reflect. अब एक चीज से मैं एंड करना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग अब 20 से 30 साल की उम्र में होंगे। मैं तो 50 पार कर चुका हूं, कोई 40 से 50 में होगा, ज्यादातर लोग आप 20 से 30 में होंगे। 20 से 30 साल वाले जो आप लोग वर्क में एंटर करेंगे, आपसे लोग अनकंफर्टेबल होंगे, जो पहले से मेरे जैसे, संजय जैसे, तिवारी जी जैसे, हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दे वुडंट नो हाउ टू डील विद यू, एंड वो गलत बात नहीं है, इट इज अ गुड थिंग। सीनियर्स आपसे अनकंफर्टेबल फील करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मैं कारण बता रहा हूं। आजकल कई कंपनियां क्या कर रही हैं, रिवर्स मेंटरिंग कर रही हैं। जैसे एक तो मेंटरिंग बताई संजय ने, जहां सीनियर जूनियर को बताते हैं। आजकल बड़े बड़े सीईओज कंपनी के कर रहे हैं रिवर्स मेंटरिंग, जहां पे कि एक इंटर्न या फ्रेशर जो लगा है उसको वो अपने साथ रखते हैं ताकि वो उनको सिखाए, जूनियर सीनियर को सिखाए। क्योंकि आज की तारीख में अब जब हम ये जूम करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, संजय अपने लड़के को या लड़की को बुला रहा है, कह रहा है यार बता यार ये क्या कैसे करना है। दैट इज रिवर्स मेंटरिंग, दिस इज हैपनिंग एवरी डे। तो इसको वर्क में भी शामिल करना जरूरी है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से बहुत कुछ सीखना है। I see the young people, I see the millennials, and I see the Gen Zs, and I feel so confident, so proud कि ये आगे की पीढ़ी ही हमारी समस्याओं को सुलझाने वाली है, देश को, दुनिया को बहुत आगे ले जाने वाली है। ये आप लोग ले जाने वाले हो। इसमें ये मत सोचना आपको कोई भी कहे कि आप नहीं करने वाले हो, ये गलत है। आप ही करने वाले हो। और हमारी हम वी आर द जनरेशन विच इज गोइंग अवे। वी आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर द पीपल हु विल टेक इट फॉरवर्ड। जैसे ये जॉन चेम्बर्स सिस्को के चेयरमैन थे, ये कह रहे हैं कि 20 समथिंग्स इन द कंपनी ने उनको पुश किया और करने के लिए। तो आप जहां भी जाएं, जैसे हो सके रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। आप अपनी कंपनी को, आप उन लोगों को जो आपसे अनकंफर्टेबल हैं, उनको बदलने का आप प्रयास करें। ये मैं जस्ट कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने ये कंटेंट इसमें से कुछ लिया। एंड thank you. That's I hope I didn't run too much over time, but thanks Sanjay for inviting me. Thank you. Thank you very much. Wonderful session. I think we are getting a lot of chat that they like the things, guys. So many people now, about 275 people in the group. Please write on the chat if you like the session by Mr. Deepak Seth. Thank you for a very, very motivating session, sir. And we would be happy if you can stay back and listen to the talks from my friends. Though it's midnight for you, so just be with us. No, I'm look forward to hear from other guys. जब तक जगह रह सकेंगे तब तक सुनेंगे। So nice of you, sir. So thanks for inviting me, and thanks for all the inspirational words from the other seniors and
respected people before who spoke before me. We loved your talk, sir. We loved your talk. Thank you. Thank you, Deepak sir. So the message is you can never cross the ocean unless you have the courage to lose the sight of the shore. अगर आप किनारे को नहीं भूल पाएंगे तो आप समुद्र में नहीं कूद पाएंगे. So go out of your comfort zone, do things as he has suggested, and we can have a much longer session from Deepak sir later on if people feel like. Our next speaker of the day is my very own, very dear friend, Mr. Arun Dhal. Arun is a thought leader in BI and analytics space. Subsequent to doing his BTech in MMFT from GCTI in 1989, he did his MBA followed by ITPM from IIT Bombay. He has been working with the Reliance since 1992 in the areas of projects, operations, architecture, development, information delivery, business insight, and overall management. He is right now the Vice President IT. He has worked extensively in the areas of business intelligence, business analytics, customer segmentation, profiling, customer insight, campaign management, marketing technologies in manufacturing, retail, telecom, and digital space. Arun has been a regular trainer at IIM Bangalore and ISB Hyderabad as guest faculty for the topics related to business intelligence, analytics, data science, and marketing analytics. Arun is currently involved in a digital marketing platform for Reliance Jio in the capacity of Vice President IT. Over to you, Arun. Thank you, Sanjay, for the kind words. Thank you, Deepak ji. Also, he has set up a very good platform, and it was very inspiring. He talked about some very good things like very fantastic analogy about risk and plan B to encourage us to come out of comfort zones. And VUCA was